السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ہم آپ سبھی کے لیے مولانا قاری حنی ملتانی صاحب کا ایک بیان لے کے آئے ہیں۔ دوستو، آج کا عنوان ہے اللہ پاک کا عرش کیسا ہوگا۔ اس پر بیان فرما رہے ہیں خوبصورت انداز میں قاری حنی ملتانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ حضرت کی مغفرت فرمائے۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے بیان کو مکمل سنیے گا، اور چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا۔ چلو چلتے ہیں اس بیان کی اور۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی تشریح عرض کی تھی، جس حدیث پاک میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 قسم کے آدمی عرش عظیم کے سائے میں، چھاؤں میں آرام سے سکون سے ہوں گے۔ ان میں سے ایک چیز یہ بھی تھی، ان 7 آدمیوں میں سے ایک وہ بھی ہے کہ صدقہ اور خیرات اس طرح پہ کرے کہ دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں کو پتہ نہ چلے۔ قرآن کریم نے دونوں چیزوں کی طرف صراحتاً وضاحت فرمائی ہے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم۔ فرمایا اگر تم صدقہ اور خیرات چھپا کر دو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اگر اعلانیہ دو تو تمہارے لیے پھر بھی بہتر ہے۔ چھپا کر دینے میں مصلحت یہ ہے کہ دوسروں کو پتہ نہ چلے۔ اللہ پاک اس عبادت سے بے انتہا خوش ہوتے ہیں جو صرف اللہ کو پتہ چلے۔ ایک حدیث میں ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میدان حشر میں آواز لگے گی، کہاں ہیں وہ لوگ جو راتوں کو مجھے یاد کیا کرتے تھے۔ اعلان کیا جائے گا، آؤ نور والے ممبروں پہ بیٹھ جاؤ، تم اندھیروں میں مجھے یاد کیا کرتے تھے، آج نورانی ممبروں پہ بیٹھ جاؤ۔ ایک اور حدیث میں ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب آدمی چھپا کر کے کوئی عبادت کرتا ہے، مخفی عبادت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کی قبولیت کی امید رکھتا ہے، تو خداوند کریم اس سے بہت راضی ہوتے ہیں۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم۔ دونوں چیزیں صاف ہیں۔ میری راہ میں جو خرچ کرنے والے لوگ ہیں، وہ دن میں کریں یا رات میں کریں، وہ اعلانیہ کریں یا چھپا کر کے کریں، بہرحال اللہ پاک کے نبی نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کو وہ بندہ زیادہ محبوب ہے، وہ بندہ زیادہ پسند ہے جو چھپا کر کے صدقہ کرے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ اس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ آدمی ریاکاری سے بچ جاتا ہے، اور ریاکاری بہت بڑی بیماری ہے۔ اندازہ لگایا ہوگا، آدمی جب اللہ کے نام سے کچھ دیتا ہے تو یہ امید کرتا ہے کہ جس کو میں نے دیا وہ آگے سے یوں کہے جزاک اللہ، واہ جی واہ، واہ جی واہ، بہت بڑے سخی آدمی ہیں۔ نفس اس بات کا انتظار کرتا ہے، اللہ تیرے بال بچوں میں برکت دے، اللہ تیری جان میں برکت عطا فرمائے، کارخانے میں برکت دے، دکان میں برکت دے۔ کان سننے کے لیے منتظر ہوتا ہے کہ یہ لفظ اس کے منہ سے نکلے جس کو میں نے خراب کی ہے، حالانکہ اس کی زبان کے بجائے اگر اس کا دل بولے گا تو وہ زیادہ اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے۔ مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گرمیوں میں کسی کو ٹھنڈا پانی پلاؤ، تجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ میرے لیے دعا کر دو، اس کی اکڑیاں بول اٹھیں گی خدا تیرا بھلا کرے، اس کا انگ انگ بول اٹھتا ہے۔ پیاسے کو پانی ملے گا، اس کی اکڑیاں دعائیں دیں گی، بھوکے کو روٹی ملے گی، اس کی اکڑیاں دعائیں دیں گی، ننگے کو کپڑا ملے گا، اس کا دل دعائیں دے گا۔ پریشان حال کی جب مدد کرو گے وہ تمہاری تو سامنے کہے یا نہ کہے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ تو سویا ہوا ہو اور وہ تیرے لیے سر سجدے میں رکھ کر دعا کرے، یا اللہ فلاں بندے نے میرے ساتھ سلوک کیا تو اس کا بھلا کر دو۔
अल्लाह अकबर। बेशक बेशक। सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह के साथ सलूक करता था याहया बरमकी, बादशाह वक्त था। 1000 रुपया महीना दिया करता था अल्लाह वाले को खर्च के लिए। सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह तहज्जुद के वक्त पर सजदे में रखकर दुआ करते थे, इलाही याहया बरमकी ने मेरे पेट की कफालत की, मेरी दुनिया की कफालत की, मेरी दुनिया की जरूरियात में काम आया। और परवरदिगारे आलम में उसके लिए दुआ करता हूँ तो उसकी कब्र की कफालत फरमा। सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह जैसा वली कुतब और अब्दाल कमाने का दुआ करता, इलाही मैदान हशर में वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, जब कोई किसी की काम ना आए और हालात यूं बन निकले, यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनिहि, अम्मा अब्बा बीवी औलाद कोई भी किसी के काम आने के लिए तैयार नहीं। सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह सर सजदे में रखकर दुआ करते, इलाही याहया बरमकी की क़यामत में कफालत फरमा। फरमाया अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैल सिर्रन व अलानियतन फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। छुपा कर अल्लाह के नाम पे खर्च करो, ऐलानिया तौर पर खर्च करो। अल्लाह फरमाते हैं उसके लिए बहुत बड़ा अजर है और उसको चाहिए कि वो अल्लाह की ज़ात पर यकीन करे। मगर दोस्तों ये सारे का सारा मामला अपने हाथ के साथ लगा हुआ है। उलमा इकराम ने लिखा है कि मदीने का अंसारी खजूरों की तिजारत करता है, खजूर हाथ में लिए हुए चल रहा है, आधी खजूर खा चुका है, आधी बाकी है। साहिल ने सवाल कर दिया, आधी खजूर उस फकीर को दे दी। चंद दिनों के बाद मौत करीब आई, वसीयत की वारिसों को मेरा सारा काम अल्लाह के नाम पे सदका कर देना, मेरे नाम पे साले सवाब कर देना। मरने के बाद लोगों ने यूं ही कर दिया। किसी ने ख्वाब में देखा, पूछा बता क्या गुजरी, कहने लगा यहाँ का मामला बिल्कुल निराला है, यहाँ की कारोबार बिल्कुल निराले हैं। और कहने लगा रब्बे अकबर दोस्तों आपसे गुजारिश है हमारे चैनल पे नए होते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जगह मुझे आधी खजूर की मिली, इतना पूरे गुदाम का नहीं मिला। वो मेरे हाथ की थी, वो मैंने अपने हाथ से दी थी, उसमें कोई रिया नहीं, उसमें कोई दिखलावा नहीं, उसमें कोई नामवरी नहीं थी। बाद में आने वाले लोगों ने मुंह मुलाजे चुकाए, ताल्लुकदारी को चुकाया, तुम हमारे यहाँ खाया करते हो, हम तुम्हारे यहाँ खाते हैं, अदला बदला किया। कहता खाम में रब्बे अकबर की कसम मुझे पूरे गुदाम में से कुछ ना मिला। नहीं मिलता आदमी को मगर उसके हाथों की करतूत। इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक फरमान को कहाँ तक आदमी बयान करेगा, पूरी दुनिया उसमें समा सकती है। काली कमली वाले मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक वो आदमी भी अर्श के छांव में आएगा, साए में जगह मिलेगी, जिसने अल्लाह के नाम पे सदका किया, छुपा के किया, लेने वाले को भी शर्मिंदगी ना हो और इसे भी रियाकारी का मौका ना मिले और दिखलावे का मौका ना मिले। कुरान करीम में मुसलमानों अपने लिए दिए को जाया न किया करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ओ ईमानदारो, ला तुबतिलू सदकातिकुम बिलमन्नि वल अदा, बर्बाद न करो, खराब न करो, तबाह न कर डालो, खत्म न कर डालो अपने लिए दिए को।
इलाहुल आलमीन खत्म कैसे हो जाता है, बर्बाद कैसे हो जाता है, साया क्यों कर हो जाता है। फरमाया बिल मन्नी वल अदा, एहसान जतलाना हमने तेरी साथ यूं किया था। उसके मुंह पे एहसान जतलाने से, उसे जलील करने से आज तू बड़ा आदमी बनता है। कल हम तुझे ज़कात दिया करते थे, याद कर फलाने वक्त में मैंने तुझे कुर्ता पहनाया था, याद कर फला वक्त में हमने तेरे साथ यूं सलूक किया था। अल्लाह का कुरान कहता है, खुदा बंद करीम फरमाते हैं, जब तू उसको मेरा मारता है, अल्लाह फरमाते मेरे बंदे का कलेजा इकट्ठा हो जाता है, उसे तकलीफ होती है। और किसी बंदे को तकलीफ देना मेरे यहाँ जायज नहीं, अल्लाह करीम फरमाते हैं। सबसे बड़ी इबादत, सबसे बड़ी नेकी शेखुल अरब वल अजम हज़रत मौलाना सैयद हुसैन अहमद साहब मदनी नफ़रल्लाहु मरकज़हू, अल्लाह ताला की करोड़ रहमत नाज़िल हो इस मर्द मुजाहिद की कब्र मुबारक पे आमीन कहो। हज़रत वाला की खिदमत में 16 महीने रहने का इत्तेफाक हुआ। ड्यूटियों में बैठा इन लोगों की, बड़े बड़े आलिम तशरीफ लाते थे, हिंदुस्तान के भी और दूसरे मुल्कों के भी, और हज़रत वाला से वजीफा पूछते थे तो कुछ बताएं हमें, आप ऐसा वजीफा करें जिससे नेक बन जाए। बेशक सुभान बेशक। अल्लाह, उस वक्त मुझे समझ नहीं आता था, मेरा बचपन था, अब कदर होती है। फरमाया करते थे सबसे बड़ा वजीफा यह है कि किसी को सताओ मत, हिंदू हो, मुसलमान हो, मर्द हो, औरत हो, हत्ता के जानवर हो, जानकार कोई भी हो, किसी को दुख मत। और अगर आप सोचे तो ये बहुत मुश्किल वजीफा है, ये विर्द बड़ा मुश्किल है। तस्बीह फेरनी आसान है, नफिल पढ़ने आसान है, लेकिन इस वजीफे पे अमल करना बड़ा मुश्किल है कि आदमी अपने आप को बताए कि किसी को सताना नहीं, किसी को परेशान नहीं करता। मैंने आपसे कर्ज ले लिया कि 1 महीने में दूंगा, आप मेरे पीछे फिर रहे हैं, साल गुजर गया, ये सताना नहीं। मैं नऊज़ बिल्लाह किसी की धी बेटी के बारे में गलत ख्याल करता हूँ, ये किसी की आबरू को टक्कर, ये किसी को सताना नहीं। तमाम सूरतें इसमें दाखिल हैं, सफर में, अगर में, घर में, कारोबार करने में, सारी जिंदगी में अगर आप सोचे तो ये मसला बड़ा मुश्किल है कि आदमी दूसरे को तकलीफ न दे। हमारे यहाँ तो सारे तकलीफ दे करके काम बनते हैं, जब तक दूसरे को तकलीफ ना दो उस वक्त तक आदमी की पड़ाक निकलती है। और हमारे मुल्क के लोगों का मिजाज बन गया, मजबूर से कमाओ, जितना ज्यादा मजबूर देखो उतना ज्यादा कमाओ। अड्डों पे जाके देखो, स्टेशनों पे जाके देखो, वो लूट खसोट है, वो गंद बिकता है, वो मुसाफिर इतना मजबूर है कि अल्लाह पाक ने तरस खाकर सुन्नतें माफ कर दी, नफिल माफ कर दिए, फर्ज नमाज में आधी दोस्तों माफ आपसे कर दी। गुजारिश है बयान को मुकम्मल सुनिएगा। अल्लाह मियाँ जानता था कि सफर बड़ी तकलीफ से चीज है, मुसाफिर पर अल्लाह मियाँ ने तरस खाकर सुन्नतें माफ कर दी, नफिल माफ कर दिए, आधा फर्ज माफ कर दिया। मगर मुसलमान कहता है कि इन मुसाफिरों की जेब काटो, इन मुसाफिरों को नंगा कर दो, इन मुसाफिरों से जो कुछ भी है वो यहीं पर खींच लो, किसी स्टेशन पर जाके देख लो, तमाम चेक करने वाले लोग मर गए, कब्रों में चले गए। जहर भी मिला करके बेच डालो, कोई बात नहीं, 4 दिन की पक्की हुई रोटी बेचते रहो, कोई बात नहीं। सारे अफसर मर गए, सारे डॉक्टर मर गए, तमाम इंतजामिया वाले लोग मर गए। और अगर जरा का पता चल जाए कि फलां जगह से 2 दुकानदार लड़ रहे हैं तो आप फौरन पहुंचेंगे कि उससे भी माल मिलेगा, उससे भी माल मिलेगा। माल बटोरो जितना बटोरा चाहते हो। मैं फिर कहता हूँ कि हम जितना माल बटोर रहे हैं बहुत मुमकिन है कि न हमारे काम आए न हमारी औलाद के काम आए। हालात ऐसे,
नजर डालो दुनिया में क्या हो रहा है इस वक्त। किसी जमाने में लोग मुसाफिरों की बड़ी खिदमत किया करते थे, बल्कि मुशरिकीन मक्का करते थे। अबू जहल इतना बड़ा काफिर होने के बावजूद सत्तू पानी में घोलकर चौक में खड़ा होकर के पिलाया करता था लोगों को। उमैया बिन खलफ लोगों को पानी पिलाया करता था। आज मुसलमान से पानी को मांग करके देखें आप, कौन किसी को पानी पिलाता है? और अब तमाम जन्नती बने फिरते हो। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया कि 7 आदमियों पर से अजीम की छांव में जगह मिलेगी। उनमें से एक वो भी है जो मक्की तौर पर सदका करे, अल्लाह की ज़ात जाने और वो जाने, किसी को कोई पता न चल सके, बस अल्लाह तबारक व तआला के नाम पर वो जो दे दिया उसको दे करके भूल जाए। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ ले जा रहे हैं, गुजर रहे हैं एक इलाके से। गुजरते गुजरते एक जगह पर लोगों का मजमा लगा हुआ देखा। फरमाया क्या बात है? पता चला शाहज़ादा मकान बनाने के लिए, महल बनाने के लिए संग बुनियाद रख रहा है, बहुत बड़ा महल तामीर करना चाहता है। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ने शाहज़ादे को बुलवा लिया। फरमाया शाहज़ादे कैसा महल बनाना है? उसने बताया जी इस किस्म का नक्शा बनाया गया है। फरमाने लगी कितना खर्च होगा? शाहज़ादा कहने लगा उस जमाने में कि 2 लाख रियाल खर्च होंगे। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे बहुत मुमकिन है कि इस महल के बनते बनते तेरी मौत आ जाए, बहुत मुमकिन है ये बनकर तैयार हो जाए फिर तेरी मौत आ जाए, तू इसमें रिहाइश भी न रख सके, तू इसकी चमक धमक को देखने भी न पाए। बहुत मुमकिन है कुछ दिनों रिहाइश करने के बाद अफसोस करता हुआ हजरत के हाथ मलता हुआ दुनिया से चला जाए। हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे 2 लाख रुपया मुझे दे दे, मैं ऐसे महल का वादा करता हूँ जिसमें तू दाखिल होने के बाद कभी निकलेगा नहीं। हमेशा हमेशा के लिए उस महल में रहेगा और उस महल के आगे दोस्तों आपसे गुजारिश है हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत आला किस्म का बाग और बगीचा और गुलशन महल होगा, हमेशा हमेशा के लिए तेरा रहेगा, न तेरी मौत आएगी न तुझसे वो महल छूटेगा। मुसलमानों में यकीन का जमाना था। शाहज़ादा कहने लगा मैं बिल्कुल आपको सारा रुपया दे देता हूँ, मगर हमारे यहाँ दस्तूर है जब कोई मुआवजा हो, जब कोई लेन देन किया जाए तो जान बहन के दस्तखत होनी चाहिए, लिख पढ़ होनी चाहिए। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ने कागज निकाला और लिख दिया मैं अल्लाह पाक जल्ल जलालहू की तरफ से वादा करता हूँ शाहज़ादे से कि जन्नत में एक महल मिलेगा। शाहज़ादे ने महल पसंद कर लिया। बेशक बेशक आजकल का होता है तो मौलवी पैसे मारने का ढंग बना रहा है। जा तेरे जैसे हजारों देख रखे हैं, जन्नत मिलेगी तो यूं ही मिल जाएगी, तड़प नहीं, जज्बा नहीं, मोहब्बत नहीं। शाहज़ादे ने 2 लाख रुपया उठा करके मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह के हवाले कर दिया और वो लिखा हुआ कागज जो था वो खुद संभाल लिया और मकान बनाने का इरादा तर्क कर दिया। वो भी अल्लाह वाले थे, ये हमारे जमाने जैसे तो थे नहीं। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ने उसी वक्त ऐलान कर दिया कि जितने आज यतीम बेवा मसाकीन हो आ जाओ सारे, मालिक बिन दिनार खैरात तकसीम कर रहा है। उलमा ने लिखा है सुबह से शाम तक मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह के पास रोजा इफ्तार करने के लिए एक खजूर भी बाकी न, तमाम का तमाम अल्लाह के राह में खर्च कर दिया, 7 लोगों को दे दिया।
मुरीद कहने लगा हजरत जी शाम का रोजा किस चीज से उतारोगे? फरमाया तूने उस वक्त ना बताया, एक टका रख लेते दो चूहे आ जाती, अब तो खत्म है मामला। अल्लाह गनी सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 12 महीने का खर्च 12,000 रुपया यकदम भेजा। साल का खर्चा हमारी माँ के लिए, आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लिए फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भेजा। जब खादमा ने गठरी ला के रखी, अल्लाह गनी उम्मुल मोमिनीन फरमाने लगी मेरे और इस दौलत के दरमियान कपड़ा लटका दे, मुझे ये दौलत देखते हुए भी शर्म आती है। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने रो दिया, फरमाने लगी मुझे याद है मैं शहंशाह कायनात हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रोटी पकाया करती थी, कभी आटा छानने की नौबत लाई, फूंक मार दिया करती थी, जौ का आटा होता था जो घाट उड़ गया सूड़ गया बाकी बीच में पकाया करती थी। और फरमाती है जैतून के तेल का डब्बा घर में रखा था, वो खत्म हो चुका था, उसकी तलछन बाकी थी, नीचे जरा सी काट बाकी थी, मैल कुचैल सा लगा हुआ था। ऐसा सिद्दीक़ा फरमाती है मैंने जौ की रोटी से वो मैल कुचैल सा चुपर दिया। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नोश फरमा रहे थे और फरमाने लगे आयशा क़यामत में इस नियामत का भी सवाल किया जाएगा। आयशा फरमाती है मुझे ये दौलत देखते हुए भी शर्म आती है। मेरे आका ने बड़ी तंगी की जिंदगी बसर फरमाई, 3-3 दिन के फाके, 4-4 दिन के अमूमन फाके जाया करते थे। बहरैन से माल गनीमत आया, सारा दिन सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोना चांदी तक़सीम फरमाया। और शाम को हाल ये है, ऐसा फरमाती है हुजूर ने मुझसे पूछा घर में कोई खाने की चीज है कि नहीं, मैंने अर्ज कर दिया अल्लाह का नाम बाकी है। ऐसा फरमाती है सरकारे मदीना ने मुझसे पूछ कर भूख की हालत में नियत बांध ली। किस तरह से जिंदगी गुजारी है मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरों के लिए तीनों दरों गोहर तकसीम हो रही है और अपना हाल ये है कि चूल्हे में आग नहीं जल रही, कपड़ा पूरा नहीं है और फिर शिकायत कभी नहीं। दोस्तों आपसे गुजारिश है बयान को मुकम्मल सुनिएगा। ऐ मेरे महबूब अगर आप फरमाए ये ओहद पहाड़ सोने का बना दूं, जहां आप जाया करेंगे ये आपके साथ साथ चला करेगा। अर्ज किया और मेरे परवरदिगार मैं फकीरी में राजी हूँ, मैं इस फकीरी में राजी हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ऐसा सिद्दीक़ा फरमाती है कि मुझे ये दौलत अच्छी नहीं लगती, इस गठरी को परे ले जाओ, मेरे और इसके दरमियान में कपड़ा लटका दो और खादमा से कहा जाओ मदीने की गलियों में ऐलान कर दो आओ मोहताजो आओ गरीबो। आज ऐसा सिद्दीक़ा खैरात बांध रही। 12 महीने का खर्च है, साल भर का खर्चा आया है। फरमाती है कि असर के वक्त तक तमाम का तमाम तकसीम कर दिया है। खादमा कहती है शाम का वक्त जब आया, बेशक बेशक आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास रोजा इफ्तार करने के लिए खजूर का दाना कोई नहीं, रोटी नहीं, खाने पीने की कोई भी चीज मौजूद नहीं। खादमा कहने लगी आपने कुछ थोड़े से 2-4 आने रख लिए होते,
अब फाके से बैठी हो, पानी पी कर बैठ गई हो, रो के फरमाने लगी तू नहीं जानती इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही तर्क अमल था और यही हुजूर की वसीयत और नसीहत है, जो दौलत की तरफ पड़ेगा आखिरत बर्बाद हो जाएगी। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैहि ने लिख करके दिया, दौलत रुपया पैसा तो लाख आजादे से ले लिया, सारे का सारा दिन भर में तकसीम कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तीसरे दिन या चौथे दिन, तीसरे चौथे रोज तहज्जुद के लिए मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह जो मुसल्ले पे खड़े होने लगे तो पैरों में अंधेरे में कागज लगा। नबी सच्चा तेरा, नबी सच्चा तेरा, खुदा सच्चा, मैंने जन्नत में अपना महल पा लिया, मुझे वो महल मिल गया जिस महल के लिए तुमने वादा किया था। बात है सारी यकीन की। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 7 आदमियों में से एक वो भी अर्श अजीम के साए में होगा, छांव में होगा, जो सदका और खैरात छुपा के करता है और इस नीयत से करता है कि बस अल्लाह जाने और मैं जाना। कुरान करीम में अल्लाह की राह में खर्च करने की बहुत बड़ी फजीलत आई है और एक और चीज खास तौर पर जो हमें खटकती है उसकी भी वजाहत फरमाई। से करता है और इस नीयत से करता है कि बस अल्लाह जाने और मैं जाना। कुरान करीम में अल्लाह की राह में खर्च करने की बहुत बड़ी फजीलत आई है और एक और चीज खास तौर पर जो हमें खटकती है उसकी भी वजाहत फरमाई। फरमाया अश-शैतान यईदुकुमुल फक्र, शैतान तुम्हें ये कहता है कि अगर तुमने यूं ही लेने देने का सिलसिला जारी रखा तो कल को तुम खुद तंग हो जाओगे, खल्लाश हो जाओगे, कंगाल हो जाओगे, तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा अगर तुमने यूं ही सिलसिला जारी रखा। दोस्तों आपसे गुजारिश है हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जब भी तुम अल्लाह के नाम पे सदका करोगे, खैरात करना चाहोगे, किसी मिस्कीन और मोहताज को देना चाहोगे, अजीब अकरबा यतीम बेवा के साथ सलूक करोगे, किसी हमसा करीब के साथ सलूक करोगे, शैतान तुम्हें फौरन कहेगा थोड़ा दे, थोड़ा दे, अगर यूं ही तू देता रहा तो तू नंगा हो जाएगा। अल्लाह मियां फरमाते हैं शैतान का ये वादा है और मैं तुझे वादा देता हूँ, अल्लाहु यईदुकुम मग़फ़िरतन मिन्हु व फ़ज़ला। शैतान तुझे फकर का वादा देता है, करीबी याद दिलाता है, तू नंगा हो जाएगा। मुकाबले में मैं खुदा वादा करता हूँ बख्शिश का और बढ़ावे का, ज्यादती का। तू मेरे नाम पे देता जा, मैं बढ़ाता चला जाऊंगा। बेशक बेशक। वल्लाहु यईदुकुम मग़फ़िरतन मिन्हु व फ़ज़ला। अल्लाह मियां फरमाते हैं वल्लाहु वासिउन अलीम, मैं बहुत देने वाला हूँ, मेरे खजाने में कोई कमी नहीं। अल्लाह फरमाते हैं मैं अब देखूंगा, एक तरफ तो मेरा वादा है, एक तरफ शैतान का वादा है, मैं देखूंगा अब तुम मेरा कहना मानता है, ये शैतान का कहना मानता है। सारे मसाइल रिया से, दिखलावे से बचाने के लिए है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैहि ने अपनी किताब में लिखा है कि एक जगह पर एक दरख्त था, लोग उसकी पूजा करने लगे, लोग उसकी पूजा करने लगे। जैसा कि हमारे मुल्क में भी रिवाज है, फला जगह जो चांद है बड़ा बरकत वाला है, फला पीपल बड़ा बरकत वाला है, फला बड़ा बरकत वाला है। लोगों में चर्चा हो निकलता है, फिर मुल्क भर से औरत मर्द उसकी ज़ियारत के लिए टूट पड़ते हैं। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ने लिखा है कि एक जगह पर एक दरख्त था जिसकी पूजा पाठ शुरू हो गई और खूब चल पड़ी। वहाँ एक आबिद रहता था, अल्लाह वाला।
को जब पता चला तो वो कुल्हाड़ा लेके चला मुझको काटने के लिए कि लोग शिर्क की बीमारी में पड़ गए, तबाह हो गए, मैं इस तरफ को ही काटता हूँ, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी, लिहाजा शिर्क बंद हो जाएगा। तो रास्ते में शैतान आदमी की शक्ल बना के मिला। वो कहने लगा तू भी कहाँ चले, मगर दरख्त को काटूंगा जिस पर लोग मन्नतें मान रहे हैं, शिर्क हो रहा है खुदा की जात के सिवा। कहने लगा तेरा क्या बिगड़ता है, तुझे क्या नुकसान है, मगर अच्छा शिर्क होता रहे, मेरा नुकसान कोई नहीं। मखलूक शिर्क में मुब्तला होकर तबाह होती रहे, आखिरत बर्बाद हो जाए, दुनिया बर्बाद हो जाए, मैं बैठा देखता रहूं। तो शैतान में और उस वली में कुश्ती हुई, लड़ पड़े आपस में। अल्लाह वाले ने शैतान को उठाया और जमीन के पटक के मारा और छाती पे चढ़ बैठा। शैतान कहने लगा जरा नीचे उतरिए, एक बात बताऊंगा तुझे। बेशक बेशक। जरा नीचे उतर। उसने कहा क्या बता, तेरा क्या मतलब है कि इस तरह को काटूंगा शिर्क बंद होगा, लोग अल्लाह अल्लाह करेंगे। उसने कहा बात सुन, अगर तुझे अल्लाह ही अल्लाह करनी मकसूद है और लोगों का फायदा मकसूद है, तेरे तकिए के नीचे 10 रुपए रोज मिला करेंगे। तू गरीबों को तकसीम करिए, भूखों का पेट भरेगा, दुआ करेंगे, कितना फायदा होगा। 10 रुपए रोज मिला करेंगे तेरे सिराने के नीचे, मगर इस तरह को ना खा। सूफी जी बेचारे आ गए काबू। उसने कहा भी ये कोई कम नेकी तो नहीं, और उस जमाने के 10 रुपए आज के 10 रुपए नहीं जो फूक मारने ढूंढ जाए। ये 10 रुपए में तो खुदा जाने कितनों का पेट भरेगा, कितनों को कपड़ा पहनाऊंगा, कितनों की दवा दारू करूंगा, कितनों की मुश्किल आसान होगी, दरख्त काटने से मुझे क्या मिलेगा। सूफी जी को समझ में आई, कुल्हाड़ा रखा, मुसल्ले पे बैठ गए, रात को सोए, सुबह को सिराने के नीचे से बाकी 10 रुपए मिले। कहने लगा बहुत अच्छी बात, ये तो मजे हो गए और अल्लाह की राह में खर्च कर दिए। दूसरे दिन भी सिराना उठा के देखा सुबह को फिर 10 रुपए मिल गए। उसने कहा शैतान है तो सच्चा भाई। तीसरे दिन सिराना उठाया तो है ही नहीं। दरी उठा के देखी कि शायद दरी के नीचे गलती में रख गया हो, वहां भी नहीं। चारपाई के नीचे झांक रहे हैं, मिट्टी कुरेद रहे हैं, तो शायद इधर उधर गिर गए, है ही नहीं। वो कहाँ थे? अच्छा, फिर उठाया कुल्हाड़ा और फिर उस तरफ की तरफ चले और फिर रास्ते में मिला। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, कहने लगा कहाँ चले, उस तरफ को काटूंगा, लोग शेर करते हैं। उसने कहा वो बताया था तुझे 10 रुपए मिला करेंगे, उन्होंने कहा बेईमान हो गया था, 2 दिन तो मिले, आज तो बिल्कुल नहीं मिला। दोस्तों आपसे गुजारिश है बयान को मुकम्मल सुनिएगा। शैतान में और उस वली में कुश्ती हुई, अब वली नीचे और शैतान ऊपर। अब वो नीचे दबा लिया और शैतान ऊपर चढ़ बैठा। कहने लगा तो जरा खैर ये बात बता, उस दिन तो तू नीचे था, मैं ऊपर था, आज मैं नीचे हूँ, तू ऊपर, इसकी क्या वजह है? तो कहने लगा मेरी बीमारी मुझसे ही पूछता है। उसने कहा बता तो सही। कहने लगा उस दिन तेरा गुस्सा सिर्फ अल्लाह के लिए था। उस दिन जो तेरा गुस्सा था नाराज की थी, वो अल्लाह की रजा के लिए थी और अल्लाह के लिए थी, लिल्लाह थी, उसमें तेरा कुछ शामिल ना था। आज के गुस्से में ये भी तो शामिल है ना कि वो 10 रुपए क्यों नहीं मिले, इसलिए मिलावट हो गई गुस्से में, इसलिए मैं ऊपर आ गया, जनाब नीचे चले गए। उलमा ने लिखा है कि अगर गुस्से में मिलावट हो जाने से शैतान के नीचे आदमी आ जाता है, इबादत में जब शैतान हमारी रियाकारी और सिखलावे को दखल होगा तो फिर शैतान के नीचे क्यों ना आएंगे। इसलिए फरमाया कि रियाकारी से बचना है, दिखलावे से बचना है। कई लोग नमाज पढ़ते हैं, जब लोगों में नमाज पढ़ेंगे ओ लंबा सजदा, लंबा रुकू, बड़ी लंबी अत्तहियात, बड़ी लंबी किरात, और जब अकेला पड़े तो चल में आया, ठप ठप खत्म की, वो गहरी कर गए, देरी नहीं लगी। बात इमामों का ये हाल है, जमात करावेंगे तो बड़ी लंबी चौड़ी नमाज, और बाद में 2 सुन्नतें अगर पढ़नी है ना तो मुफ्ती सारे खड़े हैं, मौलवी साहब पढ़ के चले भी गए। तमाम चीजें दिखलावे में शामिल है ये, और अल्लाह पाक दिखावे को, रियाकारी को कतल पसंद नहीं करता। वो ज़कात हो,
وہ نماز ہو, وہ حج ہو, وہ عبادت ہو, وہ خیرات ہو, کوئی چیز بھی ہو, اللہ پاک کہتا ہے جو کرنا میرے لیے کر. سبحان اس میں اللہ، کسی سبحان قسم کا اللہ۔ دکھلاوا نہ کر. اور لوگوں کو کیا دکھاتا ہے, لوگ تو تجھے آگے بے ایمان کہتے ہیں. کیا دکھانا ہے لوگوں کو؟ اس لیے قرآن کریم میں بار بار فرمایا واللہ یعظکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم یؤتی الحکمۃ من یشاء. اور لوگوں میں خدا وعدہ کرتا ہوں جو میرے نام پر تم خرچ کرو گے, میں مالک تو نہیں ہوں, بیماری سے خرچ کرا دوں گا, مقدمے سے خرچ کرا دوں گا, پریشانیوں میں خرچ کرا دوں گا, فضولیات میں خرچ کرا دوں گا, سینما تھیٹر تماشے سے خرچ کرا دوں گا. اور اگر تم صرف وجہ اللہ کرو گے, فرمایا واللہ یعظکم مغفرۃ منہ وفضلا, سب سے پہلے تو میری طرف سے بخشش کا وعدہ ہے. کتنی بڑی بات ہے کہ خود مالک یہ فرمائے کہ جب تو آئے گا میں تیرے لیے جنت تیار لیے کھڑا ہوں. بڑی اچھی بات کہی. کہتا کہ ان سے تھوڑی سی لگاوٹ حشر میں کام آ گئی, ان سے تھوڑی سی لگاوٹ حشر میں کام آ گئی. مغفرت ہے جس جو میں میرے گھبرائی ہوئی. بخشش تلاش کرتی ہے, کیا مزے کی بات ہے. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب آتے ہیں اس اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہو, آئے وہ لوگ, کہاں گئے وہ لوگ جو اپنی ضروریات میں سے نکال دوستوں آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل پہ نئے ہوتے چینل کو سبسکرائب میرے ضرور کر نام لینا۔ پر دیا کرتے تھے, جن کا یہ خیال تھا کہ ہم اس کا بدلہ اللہ سے حاصل کریں گے. فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اتنا کرنے والے لوگ تھے. کیا بتاؤں کہ گزشتہ زمانے کے لوگوں نے کس کس طریقے سے کمائی کر کے اپنی آخرت کو بنایا. آج ہم آخرت کا تو نام بھی نہیں لیتے. میرے تیرے دماغ میں یہ بات ہی نہیں کہ ہم اس دنیا کو چھوڑ بھی جائیں گے, خبر کی زندگی بھی آئے گی, حشر بھی آنا ہے, قیامت بھی آنی ہے, فلسرات بھی آنی ہے. ہم لوگوں کے دماغ میں تو یہ بات آئی نہیں. حالانکہ میں اور آپ اس نبی کے امتی ہیں, اس سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے. بے شک بے شک۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے, میں اپنے ابا کی حضور میں حاضر ہوئی اور میں نے جا کر کے اپنے ابا کے آنکھ میں آدھی روٹی کا ٹکڑا رکھ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں سے لائی؟ میں نے عرض کیا میرے ابا 3 دل کے فاقے کے بعد ایک روٹی ملی تھی, آدھی میں نے کھا لی, آدھی آپ ابا کے لیے بچا لائی ہوں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا لفظ جگر اور نور نظر روٹی کا ٹکڑا دیکھا ہے. کس تنگی سے, کس رسرت سے, کس پریشانی سے زندگی گزاری اور آمدن گزاری. یہ نہیں کہ حضور مجبور تھے, اللہ نے بار بار پوچھا ہے کہو تو دولت کے انبار لگا دو. آج ہم پوچھو ان سے کہ اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, یہ کھڑے دوڑے پھرتے عدالت کے پیچھے. نماز معاف ہے, روزے معاف ہے, اللہ کے قرآن کو نہیں مانتے, نبی کے فرمان کو نہیں مانتے. آؤ میں تمہیں بتلاؤں کہ اہل بیت کی محبت ہم کرتے ہیں یا تم کرتے ہو. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. لخت جگر کے دروازے پہ فاطمہ الزہرا کے مکان پر دروازے پہ کھڑے ہو کر فرمایا بیٹی میں گھر میں آؤں, داخل ہو سکتا ہوں؟ اندر سے آواز آئی پہلے تشریف لانے سے پہلے اپنی چادر اندر پھینک دو, اپنی چادر اندر پھینک دو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر پھینکی, اندر تشریف لائے. فرمایا بیٹی کیا ہوا؟
रो के अर्ज करने लगी, अब्बा इतना कपड़ा नहीं है बदन को छुपा, इतना कपड़ा मेरे पास मौजूद नहीं कि पूरा बदन छुपा सकूं। शर्म के मारे आपकी चादर मांग ली कि अब्बा के सामने नंगी कैसे आ। ये है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का उसवा हसना, और ये है उसकी जिंदगी जिसका नाम लेकर आज बदमाशी फैलाई जा रही है, जिसका नाम लेकर आज दौलत समेटी जा रही है। अगर नबी की बेटी से मोहब्बत करते हो तो आओ, फिर क्यों मारे मारे फिरते हो, क्यों तुमने रात दिन चक्करबाजी बना रखी, छूट नहीं छोड़ते। नबी की बेटी के पास बदन छुपाने के लिए कपड़ा नहीं, और तो सूरज खा रहा है, सूरज खा रहा है। बेशक बेशक। मुसलमान कहलाते हो अपने आप को दूध खा खा के। जो कर रहा था कि हम अपने आप को बदलेंगे कैसे। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, अभी आपने मौलाना कारी हनीफ साहब का बयान सुना। दोस्तों, बयान आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। दोस्तों, एक अगली वीडियो में आपको फिर मिलते हैं। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।